on this press conference. But before we start the press conference, I request everybody to kindly rise for national anthem. भारत माता की जय. We extend our heartfelt gratitude to all members of the media for joining us today. All the members of media for here. It is my proud privilege to welcome you all to this very special press conference hosted by Lovely Professional University, a university that has always believed in education with purpose and leadership with heart. Today, we are gathered to witness the announcement of a landmark initiative dedicated to the brave hearts of our nation, the Indian Armed Forces and paramilitary personnel. This initiative is not just a scholarship, it is a salute from world of education to the world of courage. To lead us into this momentous occasion, we are truly honored by the presence of a visionary who has continuously redefined the boundaries of education and service. Ladies and gentlemen, Dr. Ashok Kumar Mittal, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha and Founder Chancellor of Lovely Professional University. A man who embodies the spirit of nation building and whose leadership has made LPU a name recognized across the globe. Joining him today is a remarkable educationist and administrator, a source of strength behind LPU's academic excellence, Colonel Dr. Rashmi Mittal, the Pro-Chancellor of Lovely Professional University. Her disciplined leadership and student-centered vision have empowered thousands of learners. We are also privileged to have with us Dr. Jaspal Singh Sandhu, the Vice Chancellor of Lovely Professional University, an academician of national and international repute. Sir was Secretary at UGC, Director at NAC, and now working with Lovely Professional University. His scholarly leadership ensures that LPU remains at the forefront of quality and innovation in higher education. Together, this dynamic trio leads an institution that is not just revolutionizing education, but also extended its heart to the nation. Dear media people, 1965 was also an Indo-Pak war, and when there was a 50 years commemoration of this war, at that time also LPU joined hands with Indian Army. I want to show you the glimpses of that through a video, that how this institution of education joined hand with institution of courage in 2016 when it was a 50 years of 1965 war commemoration, and all these scenes or glimpses are at the premises of Lovely Professional University. सबको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में ग्रेजुएट प्रोग्राम यदि वो +2 हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यदि वो ग्रेजुएट हैं बिल्कुल पूरे स्कॉलरशिप के साथ देंगे। इसके साथ साथ हमारे पैरामिलिट्री ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इस सफलता में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में। बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो, उन सब ऑफिसर्स को, उनके सब जवानों को जो कि बीएसएफ के 3 लाख हैं, सीआरपीएफ के भी 3 लाख हैं, आईटीबीपी के तकरीबन 2 लाख हैं और एसएसबी के तकरीबन 50,000 हैं, उन सबको भी
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में फुल स्कॉलरशिप के साथ शिक्षा प्रदान करेगी। अब हम सबका टोटल करें तो ये 22 लाख से ऊपर होता है। तो ये जो 22 लाख हमारे ऑफिसर्स को, हमारे जवानों को, डिफेंस के तीनों हिस्सों को और पैरामिलिट्री के 4 हिस्सों को बिल्कुल फुल स्कॉलरशिप के साथ प्रदान करेगी। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एक छोटी सी ओटी डाली है जो हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा एक पूरी दुनिया को संदेशा दिया है। तो हम भी अब इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, एलपी के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेशा देना चाहते हैं कि भारत का हर हिस्सा, भारत की हर संस्था, भारत का हर व्यक्ति देश के साथ खड़ा है, देश के लिए खड़ा है, देश की फौजों के साथ खड़ा है, देश की पैरामिलिट्री फौजों के साथ खड़ा है। और ये सिंदूर में शहीद हुए हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, फौज के ऑफिसर, पैरामिलिट्री के ऑफिसर और कुछ नागरिक जो उस प्रोसेस में शहीद हुए, मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और खड़े होके हम तीनों निवेदन करूँगा कि हम उनको सलामी दें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या जय जवान स्कॉलरशिप के बारे में, छात्रवृत्ति के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा आप सबसे कुछ अपनी पारिवारिक बातें साझी करना चाहूँगा कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम आर्मी में तो नहीं थे, लेकिन आर्मी के कंट्रैक्टरशिप से ही हम सब लोगों ने, मेरे परिवार ने अपना जीवन शुरू किया और मेरा बचपन भी उन्हीं की कहानियों के सुनते सुनते आगे बढ़ा। आज भी हम जलंधर कंटोनमेंट में रहते हैं और जलंधर कंटोनमेंट में जो मेरा घर है, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब कोर कमांडर है, उनके घर के बिल्कुल साथ है। मेरा 16 नंबर है, उनका 17 नंबर है। एलपीयू के हमारे विद्यार्थी लगातार एनसीसी में, एनएसएस में पार्टिसिपेट करते हैं। रिपब्लिक डे की जो भारत में कर्तव्य पथ पर परेड होती है, उसमें शामिल होते हैं। फौज के साथ मिलकर हम कई जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें कुछ हम ड्रोन बना रहे हैं फौज के साथ मिलकर उनके हिसाब से। तो ये हमारा आर्मी के साथ पुराना संबंध भी था, आज भी लगातार हमारा संबंध जुड़ा हुआ आर्मी डिफेंस के साथ। जब ये पहलगाम में घटना हुई, हम सबको झिझोरा, हम सबको हिलाया, लेकिन भारत तो भारत ही है और भारत ने 14 दिन के बाद, सिर्फ 14 दिन की तैयारी में पाकिस्तान पर हमला किया। और हम सब ये जानते हैं कि वो हमला कितना सटीक था। 9 उग्रवादी ठिकानों को पहचाना गया और सिर्फ उन्हीं पर हमला किया गया, सिर्फ 1 मीटर की प्रिसीजन के साथ, ताकि सिर्फ उग्रवादियों को मारा जाए, किसी भी नागरिक को ना मारा जाए या कोई और किसी तरीके की संपत्ति को नुकसान ना हो। ये भारत की फौजों ने किया। और जब उन्होंने दुस्साहस किया, पहले गलती की पहलगाम में, हमने उसका जवाब दिया उनके 9 उग्रवादी ठिकानों को खत्म करके। फिर उन्होंने हम पर, हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह विफल कर दिया गया। लेकिन उसका जवाब देने के लिए भारत सरकार ने हमला किया, लेकिन फिर टॉलरेंस के साथ किया और उनकी हवाई पट्टियों को नष्ट किया। स्टिक के साथ, 1 मीटर के प्रिसीजन के साथ, स्टिक निशाने के साथ किया। उन्होंने कुछ देशों के माध्यम से धमकी दी परमाणु युद्ध की, तो भारत ने उनके परमाणु रिएक्टर की जगह पर बिना वारहेड का
मिसाइल भेज के उनके गेट के ऊपर ये मैसेज दिया कि हम ये भी कर सकते हैं, आपके परमाणु ठिकानों को आपके देश में ही ध्वस्त कर सकते हैं। ये उनको संदेशा दिया गया। तो ये भारत की फौजों की, भारत की पैरामिलिट्री की, भारत की पावर है, शक्ति है। हम सब जानते हैं कि भारत जो भी करता है बड़ा ही करता है। भारत बड़ा काम भी करता है, छोटा काम भी करता है। भारत ने दुनिया के जो बड़े देश अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास ये मिलिट्री पावर है, वो मिलिट्री पावर है, लेकिन जो ये भारत ने किया तीर निशाना लगाकर 1 मीटर के प्रिसीशन के साथ, वो दुनिया का कोई देश आज तक कहीं नहीं कर पाया। ये सिर्फ भारत ही कर पाया और ये बड़ा काम सिर्फ भारत ही कर सकता है। जब भारत इतना बड़ा कर सकता है तो जो भारत की संस्थाएं हैं, भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत के एक अंग है, भारत के हिस्से हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक पूरे भारत का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा दायरा है। तो उसने सोचा, हमने सोचा कि भारत इतना कर सकता है, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम भी उसमें अपनी आहुति दें, उसमें कुछ हिस्सा पाएं। सल्यूट तो करना ही है, नमन तो करना ही है, प्रणाम तो करना ही है, लेकिन उससे आगे क्या? तो उसमें मुझे श्री ज्योतिबा फुले जी, जो महान समाज सुधारक हुए महाराष्ट्र से, उनकी पंक्तियां याद आई। उनकी क्या थी पंक्तियां? अगर किसी को सम्मान देना है, अगर किसी को सम्मान देना है तो उसे शिक्षा दीजिए। ये महान ज्योतिबा फुले जो समाज सुधारक है, उनकी पंक्तियां हैं। उनकी पंक्तियों को यथार्थ रूप में ले जाते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि जितने हमारे जवान, जितने हमारे फौज के जवान, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर, जो हमारी जय जवान, इसलिए हमने इसका जो नाम दिया है जय जवान, और ये जो हमने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत विक्ट्री की है, जीत हासिल की है, पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया है कि हम भारत हैं, हम मजबूत हैं, हमारा देश का सम्मान हमने सबसे ऊपर है। हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमारे खिलाफ दुस्साहस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो संदेशा दिया कि आगे कुछ करोगे उससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप परमाणु बम की धमकी देंगे, हम आपके देश में जाके आपका परमाणु बम आपके वहीं फोड़ेंगे। तो ये भारत है, और ये भारत ने किया और आगे करके दिखाएगा। इन सबके साथ मैं ये स्कीम बहुत ही नमन होते हुए, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही सद्भावना के साथ हमारे देश के 22 लाख जवानों, ऑफिसर्स को, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस से हैं, मिलिट्री फोर्सेस से हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, मैं बहुत हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम बनने जा रही है, सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम जो प्राइवेट इदारा चला रहा है वो बनने जा रही है। तो ये काम भी भारत ही कर सकता है, ये काम भी भारत की संस्था ही कर सकती है। दुनिया के शायद किसी और देश की संस्था ये शायद ना कर सकती, और आज तक नहीं किया किसी ने। हम पहले हैं और सबसे बड़े ये चीज करने जा रहे हैं। इसके साथ हम पूरी दुनिया को ये संदेशा देना चाह रहे हैं कि यदि भारत की संस्था इतना बड़ा काम कर सकती है, इतने बड़े भारत के बड़े काम के आगे तो बहुत छोटा काम है। जब भारत की तकरीबन 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, तकरीबन 50,000 कॉलेजेस हैं, वो सब मिलके हम अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, और हम कर रहे हैं और सब करेंगे मिलके, जो मुझे इसकी उम्मीद है। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें ऑनलाइन मोड में है, तो मतलब कि फौज को, ऑफिसर्स को एक मुश्किल होती है कि छुट्टी नहीं मिलती। तो ये ऐसी मोड है ऑनलाइन एजुकेशन का जो भारत सरकार ने पीछे ही मान्यता दी है, नया सिस्टम शुरू किया है। ये भी दुनिया में हम इसको भी सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। इसमें
इसमें आपको आने की जरूरत नहीं होती। आप जहां पर भी हैं, यदि कोई जवान सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर है, कोई जवान हिंद महासागर की गहराइयों में पनडुब्बी पर काम कर रहा है, कोई विक्रांत पर काम कर रहा है, कोई घने जंगलों में भारत माता की रक्षा कर रहा है, कोई रेगिस्तान में भारत माता के लिए खड़ा हुआ है, तपती धूप में, वो कहीं भी हो, वो इस माध्यम के द्वारा, इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम के द्वारा शिक्षा ले सकता है। उसको आने की जरूरत नहीं। वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, लाइव लेक्चर भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से भी लेक्चर होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा, और जो भी सुविधाएं उनको चाहिए होंगी पढ़ाई की, जैसे कि एक रेगुलर मोड में होती है, तकरीबन सभी सुविधाएं उनको मिलेंगी। उनका एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होगा, उसके लिए भी उनको यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उनके लिए ये मोड चुना गया है ताकि वो एक्चुअली इस माध्यम का फायदा उठा सके। सभी 22 लाख जवान और ऑफिसर्स, फौज के और पैरामिलिट्री फोर्सेस। और एक इस कार्यक्रम की खूबी क्या है कि इसकी जो मान्यता यूजीसी द्वारा प्राप्त है और रेगुलर एजुकेशन के बिल्कुल बराबर है। चाहे आपने प्राइवेट नौकरी करनी है, चाहे सरकारी नौकरी करनी है, चाहे हायर स्टडीज में इंडिया में पढ़ना हो या इंडिया के बाहर पढ़ना हो, ये सभी के लिए बराबर है। इसलिए किसी को उस वजह से कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और आप सब जानते ही हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा, नैक द्वारा A++ ग्रेड जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो लेके आगे बढ़ी है। 3.68 मार्क्स है 4 में से, मतलब 92% मार्क्स के साथ वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए अभी तक के सर्वाधिक मार्क्स हैं। NRF जो रैंकिंग रहती है भारत सरकार की, उसमें 27वें नंबर पर है। दुनिया की जो रैंकिंग्स रहती हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, उसमें भारत के अंदर 9वें नंबर पर है। और सब तरीके की मान्यताएं सब प्राप्त है, तो उनको कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ये करने का मौका मिलेगा। अभी H इंडेक्स होता है वो 164 है, जो कि हिंदुस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटियों को प्राप्त है, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटी पुरानी होती है बढ़ता जाता है। लेकिन हम तो 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हमारा H इंडेक्स 164 टॉप 10 यूनिवर्सिटियों की टॉप 10 में हिंदुस्तान में आता होगा, और प्राइवेट में शायद नंबर 1 पर ही। With the Honorable Member of Parliament Rajya Sabha and Founder Chancellor of Lovely Professor University to address us all. धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो एक शॉर्ट नोटिस पर हम सबके बीच आए और हमें सुनने का और हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने किया, उसकी जीत के उपलक्ष्य में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 2 दिन पहले एक समारोह हुआ। उस समारोह की कुछ झलकियाँ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि वो हमने किस तरीके से कि भारत आपके प्रभावियों को आपके देश में ही हो सकता On this press conference. But before we start the press conference, I request everybody to kindly rise for national anthem. शुभ
We extend our heartfelt gratitude to all members of the media for joining us today. With the Honorable Member of Parliament Rajya Sabha and Founder Chancellor of Lovely Professor University to address us all. धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो एक शॉर्ट नोटिस पर हम सबके बीच आए और हमें सुनने का और हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने किया उसकी जीत के उपलक्ष्य में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 2 दिन पहले एक समारोह हुआ। उस समारोह की कुछ झलकियां मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि वो हमने किस तरीके से All the members of media for here. It is my proud privilege to welcome you all to this very special press conference hosted by Lovely Professional University, a university that has always believed in education with purpose and leadership with heart. Today, we are gathered to witness the announcement of a landmark initiative dedicated to the brave hearts of our nation, the Indian Armed Forces and paramilitary personnel. This initiative is not just a scholarship, it is a salute from world of education to the world of courage. To lead us into this momentous occasion, we are truly honored by the presence of a visionary who has continuously redefined the boundaries of education and service. Ladies and gentlemen, Dr. Ashok Kumar Mittal, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha and Founder Chancellor of Lovely Professional University. A man who embodies the spirit of nation building and whose leadership has made LPU a name recognized across the globe. Joining him today is a remarkable educationist and administrator, a source of strength behind LPU's academic excellence, Colonel Dr. Rashmi Mittal, the Pro-Chancellor of Lovely Professional University. Her disciplined leadership and student-centered vision have empowered thousands of learners. We are also privileged to have with us Dr. Jaspal Singh Sandhu, the Vice Chancellor of Lovely Professional University, an academician of national and international repute. Sir was Secretary at UGC, Director at NAC, and now working with Lovely Professional University. His scholarly leadership ensures that LPU remains at the forefront of quality and innovation in higher education. Together, this dynamic trio leads an institution that is not just revolutionizing education but also extended its heart to the nation. Dear media people, 1965 was also an Indo-Pak war, and when there was a 50 years commemoration of this war, at that time also LPU joined hands with Indian Army. I want to show you the glimpses of that through a video, that how this institution of education joined hand with institution of courage in 2016 when it was a 50 years of 1965 war commemoration, and all these scenes or glimpses are at the premises of Lovely Professional University.